Hello students. See, apart from art and culture, another very important section for IAS preliminary examination is modern India and Indian national movement. And from art and culture, I may get, I think, not less than 3 or 4 questions. But from modern India and Indian national movement together, we are going to get not less than 6 or 7 and sometimes even 8 questions would be there in your preliminary examination. So this topic, which is very important topic for IS pre, but not only prelims, this is very important for your mains and also for interview purposes. So right now we are going to discuss some important aspects of modern India and Indian national movement, and under the expert guidance of our founder Mr. Vinay Singh sir, we have decided to divide this unit modern India and Indian national movement into 3 distinct units. I have been instructed to teach in this manner. Okay, so see, modern India and Indian national movement. Simply modern India and Indian national movement, and we have divided this very important segment of Indian history into 3 distinct units. Unit 1 or section 1. Unit 1 is about the British conquest. The British conquest of Bengal and rest of India. The British conquest of Bengal and rest of India. तो इस इकाई 1 में, यूनिट 1 में हमने ये तय किया है कि हम लोग अंग्रेजों की बंगाल पर विजय और शेष भारत पर की गई विजयों का अध्ययन करेंगे। और इस यूनिट में शुरुआत हम लोग करेंगे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है भारत विजय की। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल इन मैसूर, Maratha regions and the kingdom of Punjab founded by Maharaja Ranjit Singh. Okay, na? So British conquest of Bengal, Mysore, Maratha regions and Punjab and rest of peninsular India, Punjab and Sindh and other regions of our country. So it took for the Britishers around 100 years to capture territories of our country, and eventually India was left, or India was reduced to the status of a colony of the Britishers. तो 1757 से लेकर के 1857 हमने याद रखने के लिए 2 लैंडमार्क ईयर्स लिए हैं। पहला 1757 जो प्लासी का युद्ध का वर्ष, और 1857 जिस वर्ष भारतीयों ने महाविद्रोह किया था अंग्रेजी राज के प्रति। तो 1757 के प्लासी के युद्ध और 1857 के महाविद्रोह के बीच के 100 वर्षों में ब्रिटिशर्स ने इंडिया के 63% भूभाग पर, 63% लगभग 63% भूभाग पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, और शेष 1/3 भारत पर अंग्रेजों ने राजे रजवाड़ों और नवाबों को अपना शासन जारी रखने दिया। क्योंकि राजे रजवाड़े और नवाबों में से अधिकांश, वो उनका चूंकि अस्तित्व ही अंग्रेजी राज के अस्तित्व पर निर्भर हुआ करता था, अतः वे सदैव भी अंग्रेजी राज के साथ खड़े हुए होते थे। तो भारत भूमि के 1/3 भाग पर अंग्रेजों ने राजे रजवाड़ों और नवाबों का शासन जारी रखा, बिकॉज दे फाउंड Raja Rajwadas and Nawabs very useful to crush the Great Revolt of 1857, and they also found them very useful to continue the British rule in India and longevity of the British Empire in India. तो यूनिट 1 में हमने तय किया हुआ है कि हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आए
जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा को बदल देने का काम किया। उसको हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। यूनिट 1 में जो टर्निंग पॉइंट्स आए थे, जैसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जानते हैं 23rd of June 1757 this battle was fought between the Nawab of Bengal, Nawab Sirajuddaulah, and the British East India Company. And this battle itself was not exactly a battle or an actual battle. It was just a conspiracy, and because of that conspiracy, Nawab was defeated. Nawab Sirajuddaulah was defeated, and the chief conspirator Mir Jafar was raised to the status of new Nawab of Bengal, and he became a puppet into the hands of the British East India Company. तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। यद्यपि कि यह षड्यंत्र था और मुख्य षड्यंत्रकारी भारतीयों की तरफ से मीर जाफर हुआ था, और युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, और वास्तव में वह कठपुतली नवाब हुआ करता था और उसे अंग्रेजों की हर एक बात माननी पड़ती थी। तो बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक आगे दूसरा निर्णायक मोड़ साबित हुआ इसी के कंटिन्यूएशन में, वो था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना। बैटल ऑफ बक्सर 1764, in the month of October 1764, Battle of Buxar was fought between three combined Indian powers and the British East India Company, and this was a combined effort, including three Indian powers: the Mughal Emperor Shah Alam II, Shahenshah-e-Hindustan, of course he was Shahenshah-e-Hindustan in name only at that time, and another Indian power was the fugitive Nawab of Bengal, Mir Qasim, who fled from Bengal, and third one was the Nawab of Awadh, Shujauddaulah. So they decided to challenge the army of the British East India Company at Buxar, but eventually, as a result of this battle, three combined Indian powers were uprooted or defeated. And defeat of Indians at the battlefield of Buxar was actually the defeat of entire Hindustan, and because Shah Alam II was a party in this war, in this battle. देखिए, बंगाल में पराजय, सिराजुद्दौला की जो पराजय थी वो वास्तव में बंगाल की पराजय थी, और बक्सर में भारतीयों की पराजय ये वास्तव में पूरे हिंदुस्तान की पराजय थी, क्योंकि बक्सर के युद्ध में स्वयं हिंदुस्तान के शहंशाह, जो कि वास्तव में नाम मात्र के ही रह गए थे लेकिन थे तो सही, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, वो हारे थे। और ये एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कैसे ये निर्णायक मोड़ साबित हुए, हम इसी का अध्ययन आगे कर रहे होंगे। बैटल ऑफ बक्सर, और आप जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच में एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, एक अन्य महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, जो कि पानीपत के मैदान पे लड़ी गई, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहते हैं, और ये 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। और जो पार्टीज इन्वॉल्व थे, जिन्होंने युद्ध किया था, वो मराठा पावर्स थे, मराठा शक्ति, और मराठा शक्ति का नेतृत्व किया था मराठा कमांडर सदाशिवराव भाऊ ने, और दूसरा पक्ष था अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली की मदद कर दी थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने, एंड रुहेलखंड के नवाब, और जो रुहेलखंड के नवाब थे नजीब जंग ने। और इस वजह से मराठे अकेले भी पड़ गए थे, और अन्य कुछ गलतियों की वजह से पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की बुरी हार हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करने के बाद अपने वतन वापस लौट गया था। तो वो एक निर्णायक मोड़ साबित था
निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस तरह से साबित हुआ क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया के पॉलिटिक्स में, दक्षिण भारत के पॉलिटिक्स में अब मराठे बड़ी शक्ति नहीं रह गए थे और 1761 के पहले मराठे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे थे। और एक बात तो तय हो गई थी, एक बात पता चलने लगी थी कि मुगलों के खंडहर पे अगर कोई भारतीय शक्ति अपनी इमारत बनाएगी तो वो मराठे होने वाले थे। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने इस बात को खारिज कर दिया कि मराठे मुगलों के खंडहर पर अपनी इमारत बनाने जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो दक्षिण भारत में पैर जमा ले। और धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत की राजनीति में भी अपने पैर जमा लिए, क्योंकि मराठे अब द्वितीय श्रेणी की शक्ति रह गए थे। और धीरे धीरे करके मराठों को और मैसूर की रियासत के सुल्तान और टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन लोगों को अंततः हरा दिया गया। मैसूर की शक्ति पराजित हुई, मराठे पराजित हुए और मैसूर और मराठों के क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत proved to be a decisive battle, proved to be a turning point, and result of the battle was neither in favor of Maratha nor in favor of another party, Ahmad Shah Abdali. Real beneficiaries of this battle were the Britishers, the British East India Company, because the British East India Company got a chance to strengthen its power in the politics of peninsular India. Third battle of Panipat, ये मोड़ साबित हुआ। इसके बाद दो अन्य युद्ध हुए, महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर्स बिटवीन 1767 टिल 1799, 1767 से लेकर के 1799 के बीच में मैसूर की रियासत, जिसका प्रतिनिधित्व किया हैदर अली और टीपू सुल्तान ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में 4 युद्ध हुए। और अंततः 1799 में आंग्ल मैसूर की चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान अपने राजधानी नगर श्रीरंगपट्टनम के गेटवे पर लड़ते हुए मारा जाता है और मैसूर को अंग्रेज अपने प्रभुत्व में, आधिपत्य में ले लेते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। और इसी के समानांतर ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा शक्तियों के साथ भी संघर्षरत थी, जिसे हम लोग कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। और एंग्लो मराठा वॉर्स 1775 से लेकर के 1818 के बीच में ये 3 लड़ाइयां हुई हैं, अंग्रेजों के बीच में और मराठा शक्तियों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई। और 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अन्य मराठा शक्तियां पराजित हुए और पेशवा यानी कि मराठा प्रधानमंत्री का पद ही समाप्त कर दिया गया। और जब मराठा प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया, मराठा शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई, तो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को भेज दिया गया कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर और उनकी एक पेंशन तय कर दी गई। और कुल मिला जुला करके इस तरह से मराठा शक्तियां अंतिम रूप से पराजित हुई। अब बचा था एक किंगडम जिसपे 1840 के आसपास अंग्रेजों का ध्यान गया था, और वो किंगडम था जिसकी स्थापना, वो राज्य था जिसकी स्थापना धीरे धीरे करके महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, किंगडम ऑफ पंजाब। और 1845 से लेकर के 1845-46 से लेकर के 1848 के बीच में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने पंजाब की रियासत के साथ, पंजाब के राज्य के साथ 2 युद्ध किए। उनको हम लोग बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर्स, ठीक है ना, एंग्लो सिख वॉर्स 1845-46 से लेकर के 1848 के बीच में 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए। तो सिख किंगडम पर यानी कि पंजाब के किंगडम पर जो अंग्रेजी राज का प्रहार हुआ, इसे हम लोग कहते हैं फाइनल ऑनस्लॉट। अंतिम रूप से
अंग्रेजों का हमारे ऊपर प्रहार, फाइनल ऑनस्लॉट था। और इस सब का मिला जुला परिणाम यह हुआ कि देखिए इंडिया इस समय, इस पूरे 100 साल में इंडिया क्या बन के रह गया? इंडिया बिकेम जस्ट अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन के रह गया। और वे अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज, अब वो भारत को एक उपनिवेश की तरह प्रयोग में लाने लगे। यहां का पैसा, यहां का कच्चा माल, यहां के खनिज संसाधन अपने देश ले जाते थे और वहां से वो भारत भेजने लगे थे अपने फैक्ट्रीज में, अपने कारखानों में बने हुए विनिर्मित वस्तुओं को। उससे हमें फिर हानि होती थी क्योंकि हम उनका सामान खरीद रहे होते थे, तो हमारा ही कच्चा माल लेकर के हम ही को सामान बेचते थे, तो हमें इससे दोहरा घाटा हो रहा था। तो ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, इसे हम लोग ले लें, हम लोगों ने लिया यूनिट 1 में। और यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है आईएएस प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें भी खासकर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत 1761 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। और जब एक बार इंडिया अंग्रेजों का कॉलोनी बन गया, तो अंग्रेजों ने विधिवत रूप से भारत का अधिकतम शोषण करने के लिए, टू एक्सप्लॉइट इंडिया टू द मैक्सिमम, द ब्रिटिशर्स दे डेवलप्ड हियर इन अवर कंट्री देयर पर्टिकुलर पॉलिसीज। ठीक है ना। तो पॉलिसीज को हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 2 में। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 2। तो इसमें हम लोग रखते हैं एपरेटस ऑफ द ब्रिटिश राज। एपरेटस ऑफ द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के वे उपकरण, वे नीतियां जिनके वजह से उन्होंने भारत का अधिकतम शोषण किया था। और इसमें रेगुलेटिंग, हम लोग ले लेते हैं रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट्स। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट्स। और जैसे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पिट का इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और 1784 के ही पिट्स इंडिया एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन 1857 तक चलता रहा था। और 1858 में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और भारत को, ब्रिटिश भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज के हवाले कर दिया गया था। और क्वीन विक्टोरिया, एम्प्रेस विक्टोरिया, वो भारत की भी एम्प्रेस, क्वीन एम्प्रेस हो गई थी, महारानी बन गई थी। और 1858 में ब्रिटिश भारतीयों को महारानी की प्रजा घोषित कर दिया गया था। तो रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट्स, तो और चार्टर एक्ट्स में देखिए 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट्स, इनके प्रोविजंस जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, ये प्रीलिम्स के, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक तथ्य, हर एक फैक्ट आईएएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। वही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जहां आप देखेंगे कि कोई बड़ा बदलाव आया होगा पॉलिसी में, नीतिगत परिवर्तन जहां पे आए होंगे, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हर एक बात को याद नहीं किया जाता है और ना ही हर एक बात पूछी जाती है। तो डर के नहीं पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है। तो रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट्स। इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे किसानों का शोषण करने के लिए पॉलिसी बनाई, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की भारत में भू राजस्व नीतियां, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में जैसे हम लेते हैं ना 3 तरह का, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, महालवाड़ी, परमानेंट या जमींदारी, इसको जमींदारी भी बोलते हैं, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सेटलमेंट। इसके बाद टेम्पोररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में कुछ तो परमानेंट रहा होगा, क्या परमानेंट रहा होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेम्पोररी सेटलमेंट, इसमें कुछ परमानेंट नहीं था, इसीलिए इसको टेम्पोररी बोलते हैं, टेम्पोररी सेटलमेंट। और फिर रैयतवाड़ी
सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ये लैंड रेवेन्यू पहला हो गया, एपरेटस ऑफ द ब्रिटिश राज में रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट्स, फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ताकि किसानों का अधिकतम शोषण किया जा सके, और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हस्तकरघा नीति हमारे यानी कि हमारे उद्योग धंधों को लेकर के बनाई गई नीतियां। तो अंग्रेजों को अपने फैक्ट्रीज में बना हुआ सामान हमारे देश में बेचना था, जबकि उनके सामान हमारे देश में बिकते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे देश का हस्तकरघा उद्योग बहुत समुन्नत अवस्था में था। तो अंग्रेजों ने पूरी नीति बनाई कि नीति बना करके भारत के हस्तकरघा उद्योग को निस्तनाबूद किया जाए, बर्बाद किया जाए, और जब एक बार बर्बाद हो जाएगा भारत का हस्तकरघा उद्योग, तो मजबूरी में भारतीयों को अंग्रेजों के फैक्ट्रीज में बना हुआ सामान, वह बने हुए सामान खरीदने पड़ेंगे। तो इसी को चूंकि अंग्रेजों ने बड़े नीतिगत तरीके से भारत के हस्तकरघा उद्योग, जिसमें शहरी और ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग सम्मिलित थे, विशेषकर शहरी हस्तकरघा उद्योग, जिसको इन लोगों ने बर्बाद करने के लिए एक विधिवत नीति विकसित की थी, ठीक है ना। तो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, इसके अलावा एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, एजुकेशनल पॉलिसी कि भारत में अंग्रेजों की शैक्षणिक नीति कि एजुकेशनल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू द मेंटल स्लेव्स, मेंटल स्लेवरी, कि भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा जाओ, भारतीयों को यह एहसास दिलाओ कि अंग्रेज उनके भलाई के लिए भारत में आए थे और उनका उद्धार करने आए थे, वो हमारे माई बाप थे, और उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो वास्तव में दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन सोच के तौर पर, जहनी तौर पे अंग्रेज हो, जिनका इस्तेमाल क्लरिकल ग्रेड पे किया जा सके, क्लर्क्स और चपरासी बनाया जा सके, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल और समझ सकते हो। इनका मैस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये जनमानस को शिक्षित नहीं करना चाहते थे, थोड़े से लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, और उतना ही जितने में कि उनके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति होती रहे, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, है ना। तो इस तरह बहुत सारी नीतियां अंग्रेजों ने बनाई, या फिर जैसे सोशियो कल्चरल पॉलिसी, सोशियो कल्चरल पॉलिसी, सामाजिक सांस्कृतिक नीति के भारतीयों के समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप करो और इनके समाज और संस्कृति को इस तरह से रूपांतरित कर दो, इस तरह से बिगाड़ दो कि ये अंग्रेजों के रहन सहन में ढल जाए, अंग्रेजों के जैसे सोचने लगे, उन्हीं के जैसे पहनावे की नकल करने लगे, उन्हीं की तरह हैट लगाएं, उन्हीं की तरह छड़ी घुमाएं, उन्हीं की तरह पियानो बजाएं, यानी कि उनके जैसे ढाल देना भारतीयों को कि अपनी संस्कृति ये छोड़ दे, अपनी सभ्यता ये छोड़ दे और अंग्रेजों के तौर तरीकों को अपनाएं। और दूसरा, कुछ कुछ सामाजिक सुधार करके, कुछ नीतियां बना करके, जैसे सती प्रथा पर रोक लगा करके, गुलामी प्रथा पर रोक लगा करके, ये इतना ही साबित करना चाहते थे कि वो भारतीयों के शुभचिंतक थे और वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे, वो इससे वो अपनी नीति विकसित कर रहे थे। और एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम एंटोनियो ग्राम्शी है, एंटोनियो ग्राम्शी। तो एंटोनियो ग्राम्शी ने एक टेक्निकल टर्म दिया अंग्रेजों की इस नीति के लिए, उसको उन्होंने कहा व्हाइट मैन्स बर्डन, गोरे लोगों के कंधों पर भार। ऐसा अंग्रेज कह रहे हैं भारतीयों को कि गोरे लोगों के कंधों पर भार आन पड़ा है। क्या भार? कि भाई वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो लोग सुसभ्य हैं, सुसभ्य सुसंस्कृत हो चुके हैं, उनकी संस्कृति अधिक श्रेष्ठ है हमारे से, अतः वो असभ्य जंगली भारतीयों का उद्धार करने के लिए भारत में आए हैं।
कुल मिला जुला करके एक लाइन में कहा जाए तो अंग्रेज वास्तव में इस नीति के अंतर्गत कर क्या रहे थे, वो अपने शोषण पर एक पर्दा डाल रहे थे कि दुनिया को, लोगों को ये दिखाओ, भारतीयों को ये दिखाओ कि अंग्रेज भारत में भारतीयों के उद्धार करने के लिए आए हैं, यूं ही नहीं चले आए हैं बिना बात के, वो शोषण करने नहीं आए, ऐसा अंग्रेज बता रहे हैं। तो व्हाइट मैन्स बर्डन, एक तो ये उन्होंने हमें बताना शुरू किया, और दूसरा ये भी बताना शुरू किया कि एक उन्होंने बताया कि सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म थ्योरी बताई, सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद क्या, कोई थ्योरी नहीं है ऐसी, ठीक है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत थ्योरी बनाई गई थी, सामाजिक डार्विनवाद। तो डार्विन ने बायोलॉजिकल सेंस में यह बताया था कि प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, श्रेष्ठ जीन वाले जंतु और वनस्पतियां टिकते हैं, बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उस प्राकृतिक सिद्धांत को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लागू करने का काम किया अंग्रेज सोशियोलॉजिस्ट ने, उनके समाजशास्त्रियों ने। एक विधिवत तरीके से झूठ और मनगढ़ंत थ्योरी गढ़ी गई कि सामाजिक डार्विनवाद होता है, यानी कि इन्होंने कहा कि नेचुरल सुपीरियोरिटी, ठीक है ना, नेचुरल सुपीरियोरिटी ऑफ व्हाइट्स ओवर ब्लैक्स, काले लोगों पर गोरे लोगों की सामाजिक श्रेष्ठता होती है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक मनगढ़ंत सिद्धांत गढ़ करके अंग्रेजों ने हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे। तो बहुत से भारतीय उस जमाने में ये मानने लगे थे कि अंग्रेज भले लोग हैं, अंग्रेज हमारे शुभचिंतक लोग हैं, ठीक है। तो ऐसी नीतियां बनाई गई थी। तो अब देख रहे हैं ना हम लोग, यूनिट 1 में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड रेस्ट ऑफ इंडिया ले रहे हैं, यूनिट 2 में एपरेटस ऑफ द ब्रिटिश राज लेते हैं, और यूनिट 3 में जो कि सबसे इन तीनों इकाइयों में, यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है आईएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो यूनिट 3 में हम लोग लेते हैं रिएक्शंस ऑफ द, देखिए रिएक्शंस, रिस्पॉन्स, या आप इसको रिस्पॉन्स लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस against the British policies, ठीक है ना, ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटरी पॉलिसीज, ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटरी पॉलिसीज, रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटरी पॉलिसीज, अंग्रेजों की शोषक परक नीतियों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया, प्रतिक्रिया दिखाई गई, उसको हम लोग यूनिट 3 में रख देते हैं। देखिए जैसे यूनिट 3 में हम लोग ले लेते हैं रिवोल्ट्स, ठीक है ना, रिवोल्ट्स, इसमें किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह, पीजेंट रिवोल्ट, सिविल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, और लास्ट में हम लोग ले लेते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना, जैसे 1828 ब्रह्म समाज, राजाराम मोहन रॉय, ठीक है ना, हेनरी विवियन डिराचियो, यंग बंगाल मूवमेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन जैसे सामाजिक सुधारक आगे आए। आगे चल करके स्वामी दयानंद सरस्वती, महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारक आए, धार्मिक सुधारक आए। सैयद अहमद खान, नौरोजी फरदौनजी जैसे सुधारक लोग आगे आए, और उन्होंने ये लक्ष्य रखा अपने लिए कि वो भारतीयों के समाज और संस्कृति और धर्मों में व्याप्त बुराइयों को दूर करेंगे, उन पे प्रहार करेंगे और सुधार करेंगे, ताकि अंग्रेज हमें नीचा ना दिखा सके।
तो इसे हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो था इंडियन नेशनल, जहां से सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारतीयों का राष्ट्रीय आंदोलन या भारत के स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने अपनी एक रणनीति बनाई, इसको पढ़ने के लिए हमने अपनी रणनीति बना ली, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है ना। अब हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ने जा रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, एपरेटस ऑफ द ब्रिटिश राज, इन सबको पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 1701 से लेकर के 1701 से लेकर के 1750-1760 तक के आसपास में भारत की स्थिति कैसी थी, विशेषकर भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगर हम लोग भारत की आर्थिक स्थिति समझ लें 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, पूर्वार्ध में, तो इससे हमें एक बात पता चल जाएगी, यह पता चल जाएगी कि अंग्रेजों ने किस हद तक हमारा शोषण किया था और कैसे भारत भूमि को बर्बाद करके फिर वो अंततः 1947 में वापस जाते हैं, भयानक रूप से शोषण करके जाते हैं। तो तुलनात्मक रूप से हम इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग लेते हैं जैसे इंडियन, पहले आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं इंडियन इकोनॉमी mainly from 1707 till 1757, 1707 से लेकर के 1757 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी उस जमाने में। तो हमने दो लैंडमार्क ईयर्स लिए हैं ताकि हमें याद रहे। पहला लैंडमार्क ईयर लिया है हमने 1707, जबकि मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर की उस वक्त मृत्यु हुई थी उस वर्ष, और 1757 बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। तो इस समय अगर आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के हालात क्या थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात क्या थे, अगर हम लोग एग्रेरियन एंड एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन ऑर्डर की बात करें, एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन ऑर्डर, कृषि एवं कृषि संगठन। तो एग्रीकल्चर और एग्रेरियन ऑर्डर में आप देखेंगे कि उस वक्त प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर वाज सबसिस्टेंस, टू फीड द पीपल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कृषि का मुख्य उद्देश्य लोगों को खिलाना था, लेकिन कृषि का एक अन्य उद्देश्य कॉमर्शियल भी था, व्यवसायिक भी था, और बड़े पैमाने पर व्यवसायिक फसलों का भी उत्पादन कराया जाता था, और राज्य किसानों को प्रेरित करता था कि बड़े पैमाने पर व्यवसायिक फसलों का, मार्केट के लिए फसलों का उत्पादन किया जाए। तो खाने पीने के लिए मूल रूप से या मुख्य रूप से 3 फसलें उपजाई जाती थी, चावल, गेहूं और ज्वार बाजरा जैसी फसलें, मोटे अनाज, ठीक है। और व्यवसायिक स्तर पर जिन फसलों का उत्पादन कराया जाता था उसमें गन्ना, शुगरकेन, कॉटन, ऑयल सीड, लिनसीड वगैरह, तिलहन ये सब कराया जाता था। और इसी समय आप देखेंगे कि कई तरह की नई फसलों का भी भारत में आगमन हुआ था जो कि पहले उनकी खेती नहीं होती थी, है ना। जैसे पपाया, पाइनएप्पल, टोमेटो, चिली, पोटैटो, ना, आलू, मिर्च, लाल मिर्च, आलू, अनानास, पपीता, ठीक है। ऐसी फसलें जो पहले भारत में नहीं होती थी, वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही वास्तव में भारत में आई, कुछ स्पेन से, कुछ अफ्रीका से, अन्य देशों से। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हमारे यहां उपजाए जाते थे और लोगों को खिलाने के लिए भी कल्टीवेशन किया जाता था, खेतीबाड़ी किया जाता था। तो एग्रीकल्चर, एग्रेरियन ऑर्डर और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है ना, हस्तकरघा उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अगर हम लोग इन सबको मिला जुला करके देखें तो उस जमाने में 1707 से 1757 के बीच में आप देखेंगे कि
जीडीपी ऑफ इंडिया, इंडियन जीडीपी या इंडियाज जीडीपी, भारत का सकल घरेलू उत्पाद, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का यह बैठता था लगभग 24.5% ऑफ 24.5% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी। अब आप इसको अंदाजा लगाइए। अब एक चीज है कि ये डेटा बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन हमें ये अंदाजा जरूर देता है। ये डेटा हमने लिया है प्रोफेसर इरफान हबीब से, उनकी किताब से लिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो प्रोफेसर इरफान हबीब की टेक्स्ट बुक से हमने ये डेटा लिया हुआ है कि उस वक्त भारत का जीडीपी इतना जबरदस्त था, इतना बड़ा योगदान था उसका, कि दुनिया के जीडीपी का अकेले 1/4 बैठता था। और आश्चर्यजनक रूप से आप लोग जानकर आश्चर्य करेंगे कि इंडिया का जीडीपी ब्रिटेन के जीडीपी का, जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोला गया, तो ग्रेट ब्रिटेन के जीडीपी का, ग्रेट ब्रिटेन के जीडीपी का इंडिया का जीडीपी 8.5 टाइम्स था, 8.5 गुना अधिक था। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे ही इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था। और उस जमाने में यूरोपियन ऑब्जर्वर्स ये बोला करते थे, यूरोपीय पर्यवेक्षक ये बोला करते थे कि भारत एक ऐसी जगह है जहां सोना चांदी जाता तो है, लेकिन जाकर डंप हो जाता है, जमींदोज हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में सोना चांदी जाकर डंप कर जाता था और कभी बाहर निकल ही नहीं पाता था। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया का जो इकोनॉमी था ना, इंडियन इकोनॉमी, उस जमाने में इंडियन इकोनॉमी ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हुआ करता था। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होता था विथ लिटिल अमाउंट ऑफ इंपोर्ट। ठीक है ना। तो निर्यात बहुत अधिक होता था भारत से यूरोपीय बाजारों की तरफ, और आयात के नाम पर बहुत कम आयात होता था। तो निर्यात बहुत अधिक होता था और आयात बहुत कम होता था, जिसकी वजह से व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वर इंक्लाइंड टू द ग्रेटर एक्सटेंट, इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ इंडिया, भारत के पक्ष में झुके हुए थे, इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ इंडिया। इसीलिए देखिए, तो जब भी यूरोपीय या अरब वाले हमारे साथ व्यापार करने आते थे, तो वो हमें हमेशा सोना चांदी दे करके जाते थे। और जब सोना चांदी देते और हमें कुछ ज्यादा खरीदना नहीं होता था, तो वो सारा पैसा यहीं डंप कर जाता था, सोना चांदी यहीं डंप कर जाता था। सो इन दोस डेज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, इंडिया वाज कंसीडर्ड टू बी अ डंपिंग यार्ड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एंड दिस had happened mainly because Indian economy was an export oriented economy with very little amount of import, and hence balance of trade and balance of payments were inclined in favor of India. ठीक है, एक पॉइंट। अब दूसरा हम आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट के अलावा टाउन्स एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, टाउन्स एंड मैन्युफैक्चर, बहुत सारे हमारे यहां कॉमर्शियल टाउन्स हुआ करते थे, व्यवसायिक नगर हुआ करते थे, प्रशासनिक नगर, सांस्कृतिक नगर, व्यवसायिक नगर। तो व्यवसायिक नगर हुआ करते थे सूरत, अहमदाबाद, भड़ौच, पटना, ठीक है ना, श्रृंगापट्टनम, मसूलीपट्टनम, बंगाल में कई सारे व्यवसायिक केंद्र हुआ करते थे जो शहरों का रूप ले लिया करते थे। तो कॉमर्शियल टाउन्स हमारे यहां खूब होते थे उस जमाने में, और खूब उत्पादन होता था। और कुछ क्षेत्र कुछ विशेष उत्पादन के लिए दुनिया भर में विख्यात हुआ करते थे। ठीक है, तो टाउन्स में, कॉमर्शियल टाउन्स में हमारे यहां एक खास बात यह थी कि इंडियन आयरन जो था, तो इंडियन आयरन बढ़िया क्वालिटी का आयरन होता था। इंडियन आयरन वॉज सॉफ्ट एंड इजिली मैलेबल, सॉफ्ट एंड इजिली मैलेबल। भारतीय लोहा आसानी से
आघात वर्ग होता था, मैलेबिलिटी बहुत होती थी, और इसको गला आयस को 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघला करके बड़े अच्छे से आयस निकाल लेने की कला में भारतीय माहिर हुआ करते थे। तो इंडियन आयरन वॉज सॉफ्ट and easily malleable, and in several localities was such as to be easily converted into steel, और बड़ा अच्छा स्टील बनता था, और उस स्टील से बहुत सारे सामान बनाए जाते थे, और खासकर स्टील की तलवारें, जिन्हें हम लोग बोलते हैं डैमेसेंट वर्क स्टील, ठीक है ना, स्टील की तलवारें, और वो भी बड़ी सजावटी, स्टील की तलवारें बड़ी सजावटी होती थी, उसका जो हैंडल होता था ना, हत्था, उस पर शानदार कारीगरी की जाती थी। तो भारत के स्टील की तलवारें दुनिया भर में विख्यात थी और उनकी भारी मांग होती थी। और देखिए, स्टील की तलवारों के साथ ही साथ गन्स, ठीक है ना, गन्स खूब बनती थी, और इंडिया गन्स का एक्सपोर्ट किया करता था। आज देखिए, आज हम लोग लीडिंग इंपोर्टर हैं, लीडिंग इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस। एक जमाने में 18वीं शताब्दी में फर्स्ट हाफ में हम लोग गन्स के लीडिंग एक्सपोर्टर हुआ करते थे, और भारी भरकम एक से एक गन्स बनती थी, एक से एक तोपें बना करती थी, ठीक है। कुछ तोपें तो इतनी भारी भरकम होती थी कि उनको कई कई हाथी मिलकर खींचा करते थे। तो ऐसी तोपें जो बहुत भारी भरकम होती थी, उनको गजनाल बोलते थे, पुल्ड बाई गज, गज मतलब हाथी, गजनाल। कुछ तोपें बॉर्डर एरियाज के रेगिस्तानी क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे, तो उनको बोलते थे, ऐसी तोपें, छोटी छोटी तोपें होती थी, उनको कहते थे शुतरनाल। गजनाल, शुतरनाल, शुतर मतलब होता है लंबी गर्दन, तो शुतरनाल लंबा बैरल जैसा, तो शुतरनाल लंबी गर्दन, ऑस्ट्रिच, कैमल, ये सब शुतर मुर्ग जैसा होता है ना, शुतर मुर्ग, तो लंबी गर्दन वाला मुर्गा। तो शुतरनाल का मतलब होता है ऐसी तोपें जो ऊंटों के द्वारा खींची जाती थी, और वो बॉर्डर एरियाज को, रेगिस्तानी एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काम में लाई जाती थी। और कुछ तोपें छोटी छोटी होती थी, तो उन्हें आदमी भी ऑपरेट कर ले जाते थे, खींच ले जाते थे, तो उसे बोलते नर, नर मतलब मनुष्य, नरनाल। तो उस जमाने में आप देख रहे हैं ना, वेराइटीज ऑफ गन्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिजन्स, एंड इंडियन गन्स वर फेमस वर्ल्ड वाइड, एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्टेड आवर गन्स एंड एम्युनिशंस। तो जब वो लोग गन्स खरीदते तब हमें पैसा देते, और वो पैसा हमारे यहां डंप किया रहता। तो एक तो ये गन्स डैमेसेंट, इनके अलावा देखेंगे आप कि हाथी दांत, अब तो ये सब बैंड है, उस जमाने में आइवरी वर्क है ना, हाथी दांत पर सजावट का काम होता था। आप इसको गूगल सर्च करिएगा, इमेजेस, गूगल इमेजेस में आइवरी वर्क ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, तो आप देख करके दंग रह जाएंगे कि हाथी दांत पर इतनी शानदार कारीगरी कैसे कर पाते थे उस जमाने के कलाकार। तो आइवरी वर्क इंडिया का बहुत फेमस था, ये फेमस था पूरे दुनिया में, फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, फेमस वर्ल्ड वाइड। और इसका हैवी डिमांड होता था, इसकी भारी मांग होती थी, हैवी डिमांड। आइवरी वर्क, डैमेसेंट वर्क, गन्स, और एक और खास बात है, महत्वपूर्ण बात, कि उस जमाने में इंडिया का कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन और सिल्क और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्परस कंडीशन में था, आज भी है कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री हमारा मजबूत स्थिति में। तो कॉटन के ना खूब बढ़िया बढ़िया, सिल्क के खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े हमारे यहां बना करते थे। कुछ तो इतने फाइन फैब्रिक्स होते थे ना कि पूछिए मत, पारदर्शी, इतना झीने, इतने मुलायम वस्त्र होते थे कि यूरोप में जब इंडियन कॉटन, इंडियन सिल्क के कपड़े जाते थे ना, तो खरीदारों की लाइन लगी होती थी कि इंडियन कॉटन, इंडियन सिल्क आया हुआ है। ये आलम था उस जमाने में, ठीक है। तो कॉटन और सिल्क, अब देखिए, जैसे एक कपड़ा जो बड़ा फेमस हुआ करता था, आज भी फेमस है, मलमल, ठीक है, इसको मसलिन बोलते हैं, मलमल, मसलिन। और एक वक्त में तो बॉलीवुड में इस पे गाना तक बना हुआ है, गाना कुछ इस तरह से आप लोग सुनते हैं, मैं अक्सर ही क्लासेस में ये बोल भी देता हूं कि वो पान खाए
सैया हमार मलमल का कुर्ता, बड़ा मुलायम कुर्ता होता, मलमल का कुर्ता छींट लाल लाल। तो मलमल का कुर्ता, और ये छींट जो है ना वो लाल लाल छींटे नहीं है पान के, छींट मतलब होता है कपड़े की एक वैरायटी, छींट CHINTZ। जैसे मसूलीपट्टनम का छींट का कपड़ा बेहद प्रसिद्ध था। तो मलमल, और मलमल के उत्पादन के लिए उस जमाने में ढाका बड़ा फेमस हुआ करता था। तब ढाका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब एक ही था, ठीक है ना। तो ढाका, ढाका ऑफ मलमल, सॉरी मलमल ऑफ ढाका, ठीक है। कैलिको, एक कपड़ा होता था कैलिको, कैलिको होता था जिसको बाफ्टा भी बोलते थे, बाफ्टा या कैलिको। और तीसरी वैरायटी होती थी छींट, और छींट के लिए नॉर्थ इंडिया भी फेमस था, लेकिन खासकर हैंड प्रिंटेड छींट जो होता था ना वो मसूलीपट्टनम में खूब बनता था। मसूलीपट्टनम, हैंड प्रिंटेड शीट ऑफ मसूलीपट्टनम वाज आल्सो फेमस वर्ल्ड वाइड। और एक जरी का काम, गोल्ड ब्रॉकेट जरी का काम, जिसके लिए गुजरात बहुत फेमस हुआ करता था। तो अब देख रहे हैं ना कि क्षेत्र विशेष विशेष प्रकार के कपड़ों के उत्पादन के लिए जाने जाते थे और ये बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें मिलकर के भारत के एक अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत स्थिति में रखा करते थे, और इतना मजबूत कि दुनिया के जीडीपी का 24.5% और ग्रेट ब्रिटेन के जीडीपी का 8.5 गुना होता था। हालांकि ये हो सकता हो कि थोड़ा एग्जैजरेटेड लगे, लेकिन स्थिति बेहद मजबूत थी हमारी, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। किसी भी इतिहासकार से आप पूछेंगे तो यही कमोवेश बात निकल करके आएगी। और इन सब चीजों को देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य को फैसिलिटेट करना होता है, तो आसान बनाना होता है। तो व्यापार वाणिज्य को फैसिलिटेट करने के लिए उस जमाने में एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम भी चलता था। ट्रेड एंड क्रेडिट, उधार वगैरह दिया जाता था, ब्याज पर पैसा खूब चल रहा होता था, और एक तरीके का पूरा बैंकिंग, उस जमाने के बैंकिंग सिस्टम, आज के बैंकिंग सिस्टम की तो तरह नहीं, लेकिन हाँ उस जमाने का अपना एक बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। इसे हुंडी बोलते हैं, HUNDI, हुंडी। तो हुंडी और ट्रेड और ये सब होता था, ट्रेड एंड क्रेडिट, हुंडी। और इसमें भी आप देखेंगे कि ये भी कास्ट वाइज था। तो देखिए, हमेशा से कास्ट सिस्टम नेगेटिव रोल प्ले किया हो ये कोई जरूरी बात नहीं है, कई बार कास्ट सिस्टम ने पॉजिटिव रोल भी प्ले किया हुआ है ना। इस सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि कास्ट सिस्टम भला पॉजिटिव कैसे हो सकता है। किसी न किसी जमाने में कभी ना कभी कुछ हद तक कास्ट सिस्टम पॉजिटिव रोल प्ले करता था, जैसे यहां पे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसा इसलिए ना क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बनिया कास्ट होता था, बनिया कास्ट, और बनिया कास्ट ट्रेड एंड क्रेडिट में इन्वॉल्व होते थे, और ये बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य किया करते थे। वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, और ये फंड्स भी रेज कर लेते थे, म्यूचुअली क्रिएटेड फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी उसमें। तो बनिया कास्ट के पास ये बेनिफिट होता था कि ये मिल करके पैसा कलेक्ट कर लेते थे और बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य किया करते थे। हालांकि बनिया कास्ट में भी रीजनल वेरिएशन दिखाई देता है, रीजनल वेरिएशन दिखाई देता है। और आप देखिएगा कि पंजाब में खासकर एक जाति जो बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य किया करती थी 18वीं शताब्दी में, उन्हें खत्री कहते थे, खत्रीज इन पंजाब, ठीक है ना। और वैसे ही गुजरात में बोहरा, ठीक है ना, मुस्लिम बोहरा व्यापारी होते थे। बोहरा मुस्लिम्स ये व्यापारी होते, अभी भी होते हैं। ये गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े प्रगतिशील मुसलमान हैं। ये व्यापार वाणिज्य, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ करते हैं। इनमें रूढ़िवादिता और अंधविश्वास बहुत कम होता है। बोहरा क्योंकि प्रगतिशील है ना, व्यापार वाणिज्य खूब किया करते हैं ये लोग। धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, ऐसा नहीं कि धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, लेकिन रूढ़िवादी कम से कम नहीं है, बढ़िया लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, बोहरा मुस्लिम ट्रेडर्स। तो ये बोहरास ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे अब साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में, तो एक व्यापारिक समुदाय होता था बनिया कास्ट में ही, जिनको चेट्टियार बोला जाता था। चेट्टियार इन तमिलनाडु, ठीक है ना, चेट्टियार इन तमिलनाडु।
तो अब आप देख रहे हैं कि पूरा एक बनिया कास्ट मौजूद था जो व्यापार वाणिज्य में ही संलग्न रहता था। इनको आइडिया होता था कि कैसे व्यापार वाणिज्य किया जाता है, ये सारी बातों से परिचित होते थे और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा देते। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला थी ना व्यापार वाणिज्य करने की, बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होने की, उधारी पे पैसा चलाने की, ब्याज पर पैसा ये सब इन्हें मालूम रहता था बहुत अच्छे तरीके से। तो उस समय आप देखिए कि एक बोहरा व्यापारी थे, उनका नाम था वीर जी बोहरा। तो वीर जी बोहरा सूरत के रहने वाले थे। सूरत के वीर जी बोहरा के पास उस जमाने में यानी कि 1660s में, औरंगजेब के शासनकाल की बात है ये, 1660 में वीर जी बोहरा के पास 80 लाख रुपए की संपदा थी। यहां पे रुपया का मतलब सिल्वर कॉइन से है। 80 लाख रुपया सिल्वर कॉइन उस जमाने में संपदा है, ठीक है। और इसको आप चाहें तो आज के मुद्रा में कन्वर्ट करके भी आप देख सकते हैं। जैसे ये मुगलों का सिक्का, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, तो मुगलों का चांदी का सिक्का आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $100 के आसपास का है, ठीक है ना। $100 तो $1 के हिसाब से $100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन। तो 80 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए $100 से और फिर उसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वीर जी बोहरा का टोटल संपदा, टोटल स्टेट इनका निकल आएगा 80 लाख का। और एक और व्यापारी हुआ करते थे मुल्ला अब्दुल गफूर, ठीक है ना, मुल्ला अब्दुल गफूर। उस जमाने में मुल्ला अब्दुल गफूर के पास 20 बड़े बड़े पानी वाले जहाज थे, 20 लार्ज शिप्स। और आश्चर्यजनक बात देखिए कि इनका जो ट्रेड था, मुल्ला अब्दुल गफूर का जो ट्रेड था, ये अकेले इक्वल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मुल्ला अब्दुल गफूर का टोटल टर्नओवर ईस्ट इंडिया कंपनी के टर्नओवर के बराबर था। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई कि आप समझ सकें कि 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा क्या थी, और यह भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की औकात क्या थी। इतनी ही कि एक बड़ा व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी पे भारी पड़ जाता था हमारा, इतनी ही औकात थी। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर भारत भूमि पर अपना शासन स्थापित कर लेती है और भारत को अपना गुलाम और उपनिवेश बना लेती है। इसी बात को समझना है दरअसल हमें आगे के डिस्कशन में कि कैसे भारत गुलाम बना, और भारत कैसे गुलाम बना ये हम कब देखेंगे, कैसे देखेंगे। यूनिट जो हमने अपना प्लान बनाया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 1, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको इकोनॉमिक कंडीशन बताया इंडिया का उस जमाने में। अब आपको ये बहुत अच्छे से अंदाजा लग पा रहा होगा कि क्यों ये अंग्रेज ही भारत आया करते थे, ये फ्रांसीसी भारत आया करते थे, डच लोग आए, पोर्चुगल लोग आए, है ना। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, ये यूरोपियंस हमारे यहां इसलिए आते थे ताकि ये हमारा व्यापारिक सामान खरीद सकें। ये हमारा सामान खरीदते थे, ये हमारा सामान खरीद के यूरोप ले जाते, वहां बेचते और उस व्यापार पर उनको भारी मुनाफा हुआ करता था। भारतीय वस्तुओं की, भारतीय मसालों की यूरोप में भारी मांग हुआ करती थी। आप लोग एक नाम जानते हैं, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पे उतरा, पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल का नेटिव था, कालीकट पे उतरा। कालीकट के राजा जामोरिन ने, जिनका ऑफिशियल टाइटल ही जामोरिन था एक्चुअली, कालीकट के राजा जामोरिन ने वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया। और इसलिए स्वागत किया क्योंकि जामोरिन को मालूम था कि यह आया है व्यापार वाणिज्य करने, सामान खरीदेगा तो ढेर सारा सोना चांदी तो देकर के जाएगा ही जाएगा। तो वास्को डी गामा ने सामान खरीदा,
और फिर वो अपने 3 जहाजों नीना शांता पिंटा पर लाद करके वापस पोर्चुगल गया, पुर्तगाल गया, अपने नेटिव प्लेस, और वहां जाकर के जब उसने भारतीय सामान और मसाले बेचे तो आप लोग जानते हैं कि उसे कितना मुनाफा हुआ था उस व्यापार पर, उस खरीदो फरोख्त पर, उस खरीद फरोख्त पर उसको मुनाफा हुआ था 60 टाइम्स, 60 गुना मुनाफा हुआ था। अनबिलीवेबल प्रॉफिट था, ये अद्वितीय तरीके से ज्यादा था। इसीलिए यूरोपियंस हमारे देश में आया करते थे, ठीक है ना। एडवेंट ऑफ द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, भारत में यूरोपियों का आगमन। और कहां से शुरुआत हो रही है, पोर्चुगल, ठीक है, फिर इसके बाद डच लोग आए, और फिर इनके बाद अंग्रेज लोग आए, ठीक है, इंग्लिश या फिर ब्रिटिश, ठीक है, और फिर फाइनली अंत में, सबसे अंत में व्यापार करने आए फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच लोग आए, जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका, प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कैसी कंपनी थी, ये स्टेट एंटरप्राइज थी, स्टेट एंटरप्राइज, ये सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी, ठीक है ना। तो ये कंपनियां और ये लोग यूरोपियंस, ये हमारे देश में आया करते थे, ठीक है। क्यों आया करते थे, इन्हें व्यापार करना होता था, इन्हें हमारा सामान खरीदना होता था, क्योंकि उस व्यापार पर इन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ करता था, ठीक है। तो हमें इसमें यह पढ़ना है कि कैसे अंग्रेज, सब कुछ तो नहीं, हम लोग इन सब क्लासेस में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन क्लासेस के अपने लिमिटेशंस होते हैं, और रेगुलर क्लासेस में अलग तरीके से थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के पढ़ा दिया जाता है, वो आप खुद से भी मेहनत करके पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं डिटेल में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहला बड़ा मोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में कब आप देखते हैं, 23 जून 1757 को देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज के साथ, सिराजुद्दौला के साथ एक षड्यंत्र करके, सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र करके युद्ध किया था, और उस युद्ध में, उस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, उसे मार दिया गया था, और बंगाल पे तख्ता पलट करके मुख्य षड्यंत्रकारी मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था, जो कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। अब हम यूनिट 1 के पहले टॉपिक पे आ रहे हैं, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बैकग्राउंड में। और 1599 में आप देखेंगे कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर मिलता है, ठीक है ना, रॉयल चार्टर मिलता है। और रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया, वहां की क्वीन ने दिया, क्वीन एलिजाबेथ ने, क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया, और उस रॉयल चार्टर में यह बताया गया कि जो ये कंपनी बनी है, द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है ना, द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ये कैसी कंपनी, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ठीक है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। इस प्राइवेट कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया था, और रॉयल चार्टर देने का मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया गया था, मोनोपोली ओवर किस बात पे एकाधिकार दिया गया था, मोनोपोली ओवर द एशियन ट्रेड, एशियन ट्रेड, मोनोपोली विथ, या हम लोग इसको विथ लिख दें, मोनोपोली विथ द एशियन ट्रेड,
एशिया के साथ व्यापार करने को लेकर के मोनोपोली दिया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी मोनोपोलिस्टिक कंपनी। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपनी, यानी कि अगर ब्रिटेन से एशिया में, इंडिया चाइना में कोई व्यापार करने आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। शुरुआत में मोनोपोलिस्टिक राइट कितने वर्षों के लिए दिया गया? शुरुआत में दिया गया 15 वर्षों के लिए, और इसको बीच बीच में क्या करना होता था? रिवीजन, इसको रिवाइज करके आगे बढ़ा दिया जाता था। ठीक है ना? ठीक है, तो रिवीजन होता था एवरी 15 और 20 years। मोनोपोलिस्टिक राइट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो रिवीजन कर दिया जाता था। और इसमें सबसे खास बात देखिए यह कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिससे इनको इंडिया में या चाइना में कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आती थी। इनको तुरंत निर्णय लेना होता था और ये तुरंत निर्णय ले लेते थे। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णय लेने के लिए फ्रांस की सरकार के पास भेजना होता था मसौदा, और फिर फ्रांस की सरकार निर्णय लेती थी, फिर वहां से कागज आता था इंडिया में। और ये इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार की एक बड़ी वजह बना कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट इंटरप्राइज था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट इंटरप्राइज था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिससे इनको ऑपरेट करने में सहूलियत हुआ करती थी। ठीक है ना? तो अब देखिए यहां से धीरे धीरे करके ही आप देखेंगे जैसे जैसे कंपनी, तो अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन इसके नीतियों में बदलाव दिखाई देगा आपको धीरे धीरे इंडिया में। फ्रॉम ट्रेड टू, क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से किधर? क्षेत्र विजय करने की ओर अब ये लोग बढ़ रहे थे। ठीक है ना? व्यापार से क्षेत्र विजय करने की ओर बढ़ रहे थे। तो इंडिया में इन्होंने, आप देखेंगे कि 1750 के दशक से ईस्ट इंडिया कंपनी के तेवर बदले हुए नजर आने लगे। ठीक है, बदले हुए तेवर में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसलिए भी बदले हुए तेवर में आती जा रही थी क्योंकि इंग्लैंड में लगातार या ब्रिटेन में लगातार बदलाव हो रहे थे। जैसे जैसे ब्रिटेन में बदलाव हुआ करते थे वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी नीतियों को भी बदला करती थी। जहां तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी डिसीजंस होते थे ना, जो भी निर्णय होते थे, वो कहां से प्रभावित होते थे? वो निर्णय इंग्लैंड या ब्रिटेन से प्रभावित हुआ करते थे। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूं। 1750 का दशक, इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड हैड बिगन। ठीक है ना? इंग्लैंड का औद्योगिकरण प्रारंभ हो रहा था, एंड इंग्लैंड वॉज एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड वॉज एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसे जैसे इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइज्ड होता जा रहा था, इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए था ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, बड़े पैमाने पर धन चाहिए था। ठीक है, बड़े पैमाने पर इन्हें धन चाहिए था इंग्लैंड के औद्योगिकरण के लिए अंग्रेजों को। और अब ये दो काम करें। देखिए अब ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम करेगी। क्या दो काम? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पैसा बचाना था, टू सेव इट्स वेल्थ,
अपना पैसा बचाना था इन्हें। और दूसरा कि इंडिया से ही इन्हें पैसा निकाल करके इंडिया का सामान खरीदना था। देखिए कैसे बदलाव दिखाई दे रहा है ना। तो अपना पैसा बचा रहे हैं और दूसरी नीति ये कि टू डिराइव वेल्थ और टू एक्सट्रैक्ट और टू डिराइव वेल्थ इन इंडिया इटसेल्फ। भारत में ही पैसा उगाही करो, भारत में ही धन उगाही करो। यानी कि भारत का सामान खरीदना है लेकिन भारत के पैसे से नहीं खरीदना है, सॉरी, उन्हें अपने पैसे से नहीं खरीदना है, उन्हें भारत के ही पैसे से अपना सामान खरीदना है। जो भी वो भारत में खरीदना चाहते थे, अब वो अपना पैसा नहीं देने जा रहे थे, हमारे ही पैसे से हमारा सामान खरीदना शुरू करने वाले थे ये। तो अपना पैसा बचाना और हमारे पैसे से हमारा पैसा उगाही करना, हमारे पैसे से सामान खरीदना। तो इस नीति को हम लोग बोलते हैं मर्केंटाइलिस्टिक फेज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मर्केंटाइलिस्टिक फेज, इसे हम लोग लेते हैं मुख्य रूप से 1750 के दशक से लेकर के 1813 का दशक। मर्केंटाइलिस्टिक फेज, वणिक, इसको बोलते हैं वणिकवाद का चरण, वणिकवाद का चरण मर्केंटाइलिस्टिक फेज बोला जाता है। तो मर्केंटाइलिस्टिक फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो काम किए। पहला काम ये कि to purchase Indian goods, ठीक है, to purchase Indian goods and spices using Indian money, ठीक है ना, using Indian money, to purchase goods and spices using Indian wealth, Indian money। और दूसरा ये कि to maximize their trade related benefits and profits, ठीक है ना, to purchase Indian goods and spices using Indian wealth and to maximize their trade related benefits and profits। तो ये दो बड़ी वजह हैं जिन्हें मर्केंटाइलिस्टिक फेज हम लोग बोल रहे हैं। अपना पैसा अब वो बचा रहे हैं और हमारे पैसे से हमारा सामान खरीद रहे हैं। इसे जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा इन्वेस्टमेंट। द कंपनी कॉल्ड दिस फिनोमेना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं हुआ आज की तरह कि वो अपना पैसा हमारे यहां इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारे पैसे से ही हमारा सामान खरीद रहे थे। इसी बात को ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट बोला करते थे, ठीक है ना। तो ये मर्केंटाइलिस्टिक फेज था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार कर रही थी, ठीक है ना। वो उसको कहते हैं हम लोग प्राइवेट कैपेसिटी में व्यापार। तो देखिए कंपनी ट्रेड जो हो रहा था दो तरीके से होता था। एक ट्रेड बाय द कंपनी के द्वारा किया जाने वाला व्यापार, और दूसरे सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर अलाउड टू ट्रेड इन प्राइवेट कैपेसिटी, ठीक है। इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में व्यापार करती थी और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दलाल होते थे, सर्वेंट्स होते थे, उन्हें इंडियन ओशियन में व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार करने की छूट दी गई थी और इसी को कहा जाता था
दस्तक, ठीक है ना। प्राइवेट कैपेसिटी में जो ये व्यापार करते थे, लेटर मिलता था इन्हें, प्राइवेट कैपेसिटी में व्यापार करने का कागज मिलता था, तो दस्तक होता था। और 1717 में, ठीक है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, एक बड़ा निर्णायक, कंपनी के व्यापार को लेकर के बड़ा निर्णायक मोड़ आया। और उस समय मुगल सम्राट हुआ करते थे फर्रुखसियर, मुगल सम्राट हुआ करते थे। फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, ठीक है, बड़ा पेनफुल डिजीज था। डिजीज क्या हम नहीं जानते हैं, जानने की जरूरत भी नहीं है। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम पेनफुल डिजीज and it became difficult for him actually. So all the doctors present at his court, they failed to treat him, they failed to medicate him properly. So then a doctor of the British East India Company, Dr. Hamilton, reached at the court. He gave proper medicine and because of treatment of Dr. Hamilton, Farrukhsiyar, the Mughal emperor, he got rid of that disease and he felt himself like the happiest man on this earth on that day. तो बड़ा खुश हुआ फर्रुखसियर की बड़ी गंभीर बीमारी से डॉक्टर हैमिल्टन ने छुटकारा दिला दिया। इतना खुश हुआ कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में एक फरमान जारी किया। इसको, ये फरमान इतना इंपॉर्टेंट रहा है, इतना महत्वपूर्ण रहा है कि इसे गोल्डन फरमान भी कहा जा सकता है। तो एक फरमान जारी करते हैं, इंपीरियल फरमान या गोल्डन फरमान। और इस गोल्डन फरमान में यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड, ठीक है, throughout the territory, duty free trade throughout the territory of Bengal, ठीक है, संपूर्ण बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की इजाजत, फरमान। और बदले में फर्रुखसियर ने कहा कंपनी को कि भाई आप पूरे बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करो और उस व्यापार के बदले में टोकन के रूप में आप सिर्फ 3000 रुपया सिल्वर कॉइन मुझे दे देना। सो merely for a sum of ₹3000 silver coin, Farrukhsiyar gave to the company duty-free trade throughout the territory of Bengal. ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं subject to an annual payment, annual rental, annual payment of 3000 रुपया। सिर्फ इतना छोटे से अमाउंट पे पूरे बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार। अब देखिए, फर्रुखसियर का फरमान किसको दिया गया? फर्रुखसियर का फरमान दिया फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उस फरमान में यह बात मेंशन नहीं किया फर्रुखसियर ने कि क्या वह छूट कंपनी के सर्वेंट्स को भी है जब वो व्यक्तिगत स्तर पे व्यापार करेंगे। तो फर्रुखसियर के इंपीरियल फरमान में यह बात ही फर्रुखसियर ने स्पष्ट नहीं की कि क्या कंपनी के कर्मचारी जब व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार करेंगे तो वह छूट उन पे लागू होगी या उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। यह स्पष्ट नहीं हुआ और यही अस्पष्टता, यही एम्बिग्युइटी आगे चल करके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की जड़ बन गया, प्रमुख वजह बन गया। क्योंकि नवाब कहता कि भाई जब कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी के कर्मचारी कहते कि भाई हमें तो छूट मिली हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा, फर्रुखसियर ने तो छूट कंपनी को दी थी, फर्रुखसियर अब मर चुके थे और बताने वाला कोई था नहीं कि भाई वो छूट सिर्फ कंपनी के लिए था या कंपनी के कर्मचारियों पर भी लागू होता था। तो इसी का आगे चल के कंपनी के कर्मचारी दुरुपयोग करने लगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अब्यूज ऑफ दस्तक, अब्यूज ऑफ दस्तक।
दस्तक का दुरुपयोग करने लगे थे। तो दस्तक का दुरुपयोग बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की बड़ी वजह था। ठीक है ना। और देखिए 1700, अगर हम लोग देखें 1756 की बात इस वर्ष, तो 1756 में आप देखेंगे कि बंगाल का नवाब बने थे सिराजुद्दौला। ठीक है, द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ठन गई। ठीक है, दे केम एट लॉगरहेड, दे केम एट लॉगरहेड। अब 3 मुद्दों, खासकर दस्तक का दुरुपयोग तो था ही। ठीक है, मिसयूज और अब्यूज ऑफ दस्तक। पहला हम लोग लिख लेते हैं अब्यूज ऑफ दस्तक, कि कंपनी के कर्मचारी जब व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार कर रहे हैं तो वो बंगाल के नवाब को टैक्स देंगे या नहीं देंगे। तो कंपनी के कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई हमें छूट मिली हुई है, सिराज कह रहा है कि भाई छूट तो कंपनी को मिली थी, तुम लोग को थोड़ी ना मिली थी। तो एक ये था, कंपनी के कर्मचारी दस्तक का ताबड़तोड़ दुरुपयोग कर रहे थे। दूसरा, इसी समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनातनी चल रही थी, क्योंकि उधर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में तनातनी चल रही थी, युद्ध की संभावना बन रही थी। ठीक है, बन क्या रही थी, चल ही रही थी, बल्कि उसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था। तो जब भी तनातनी यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चलती थी, इंडिया में अपने आप दोनों कंपनियों में तनातनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लग रहा था कि फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जरूर युद्ध होगा, क्योंकि यूरोप में शुरू हो चुका था, तो यहां पर भी होगा। तो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कलकत्ता में जो अपनी बस्ती थी, अपना जो एरिया था इनका, फोर्ट विलियम, और उसको इन्होंने घेरना और उस पे बंदूकें लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि कलकत्ता की, इसको 2-3 शब्दों में हम लोग बोलें तो कलकत्ता की किलेबंदी करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब भाई कलकत्ता की किलेबंदी आप कर रहे हैं, गन्स लगा रहे हैं, और कहां, बंगाल में। बंगाल का संप्रभु शासक सिराजुद्दौला, वो भी बिना आज्ञा के, सिराजुद्दौला के बिना परमिशन के। तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी had an apprehension of fighting a battle against the French East India Company, and hence the British East India Company started fortification of its settlement of Calcutta. And Nawab was left irritated because the company started fortification without due proper permission from the Nawab. So Nawab was left annoyed, and Nawab rightly took this act of the company, fortification act of the company, as a direct challenge to his sovereignty. ठीक है, दूसरा मुद्दा ये था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं fortification of the city of Calcutta, fortification of the city of Calcutta by the British East India Company. क्यों? Because the company had an apprehension of fighting a battle against the company.
fortification of the city of Calcutta by the British East India Company because the company had an apprehension of fighting a battle against the French company. ठीक है, ये और नवाब को क्या लगा कि भाई ये तो उसके संप्रभुता को सीधी चुनौती है, ठीक है ना, तो इट मींस डायरेक्ट चैलेंज टू द नवाब सिराज, डायरेक्ट चैलेंज टू द नवाब सिराज सॉवरेनिटी। ठीक है, तो नवाब क्या कदम उठाएगा? नवाब ने यह कहा कि भाई फोर्टिफिकेशन हटाओ, किलेबंदी हटाओ बिना परमिशन के। सो नवाब आस्क्ड द कंपनी, द ब्रिटिश कंपनी, टू रिमूव फोर्टिफिकेशन, to remove fortification, but the company का दुस्साहस नहीं किया, but the company refused to do so, मना कर दिया कंपनी ने। ठीक है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसी को बोला जाता है। खैर, नवाब सिराजुद्दौला भी शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। तो एक यहां उसको चिढ़ हुई, दूसरी एब्यूज ऑफ दस्तक से, और तीसरा प्रॉब्लम यह हो रहा था कि जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम वो नवाब के असंतुष्ट अधिकारियों का अड्डा बन गया था, और जो षड्यंत्रकारी, भ्रष्टाचारी, असंतुष्ट लोग होते थे दरबार के, उन सबको अंग्रेज फोर्ट विलियम में शरण दे देते थे। ठीक है ना, तो तीसरा मुद्दा क्या था? प्रोवाइडिंग asylum to fugitive subjects of नवाब सिराज। ठीक है, तो कंपनी असंतुष्टों को, भगोड़ों को, षड्यंत्रकारियों को उनका शरण देने लगी, शरणागत बन गई। ठीक है, शरणागत स्थली हो गया था कलकत्ता। तो एक कर्मचारी जो नवाब के दरबार का कर्मचारी था, कृष्णा बल्लभ, ठीक है, कृष्णा बल्लभ हु हैड बीन चार्ज्ड विथ फ्रॉड, कृष्णा बल्लभ गबन किया था, और गबन करके कहां चला गया? गबन करके अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है ना, सो टुक शेल्टर ऑफ द कंपनी। और नवाब ने बोला कि भाई ये मेरा कर्मचारी भगौड़ा है, भ्रष्टाचार करके भागा है, तो उसको वापस करो। तो नवाब, ठीक है ना, नवाब आस्क्ड द कंपनी टू रिटर्न कृष्णा बल्लभ। नवाब ने बोला कि भाई वापस करिए, लेकिन बट द कंपनी, एंड अगेन द कंपनी रिफ्यूज्ड। So neither the company was interested in removal of fortification of their Calcutta, nor the company was willing to return Krishna Ballabh back to the Nawab Sirajuddaulah. So on account of mainly these three factors, abuse of Dastak, fortification of the city of Calcutta by the British East India Company, because the company had an apprehension of fighting battle against the French East India Company, and when Nawab Sirajuddaulah asked the British company to remove fortification, because Nawab Sirajuddaulah rightly took this act of the company as a direct challenge to his sovereignty, but the company refused to remove fortification. Also, the company refused to give Krishna Ballabh back to the Nawab. So finally, इन तीन मुद्दों पर आकर के 20 जून 1756, ठीक है, प्लासी के युद्ध के करीब एक साल पहले की यह बात है। 20 जून 1756 को नवाब ने पूरी ताकत के साथ
कलकत्ता पर अटैक कर दिया। नवाब अटैक्ड कैलकाटा विद इज फुल फोर्स, तगड़ा हमला किया नवाब ने। अब इस हमले का देखिए परिणाम क्या हुआ। अंग्रेज अभी इतने नहीं थे कि नवाब का मुकाबला कर पाते। द ब्रिटिश फ्लेड फ्रॉम कैलकाटा, भागे, जिसमें उसका गवर्नर भी था कंपनी का, इंक्लूडिंग द गवर्नर ड्रेक, ठीक है। और भाग के कहां पहुंचे? भाग के पहुंचे एक द्वीप पर, टुक शेल्टर एट फुल्टा, ठीक है, टुक शेल्टर एट फुल्टा, फुल्टा पे जाकर के शरण लिया, ठीक है। और इंतजार करने लगे कि मद्रास से सहायता आएगी। अवेटेड फॉर फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम मद्रास। अंग्रेज लोग पेनिनसुलर इंडिया में भी पैर जमा रहे थे, मद्रास, लेकिन बंगाल से शुरुआत की थी उन्होंने। तो अंग्रेजों ने भारत की चाबी बंगाल में खोजी। ऐसा बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की चाबी बंगाल में खोजी और उन्हें मिल गई, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की चाबी दक्षिण में खोजने की कोशिश की थी, और दरअसल भारत की चाबी वहां थी ही नहीं, भारत की चाबी बंगाल में थी। बंगाल उस वक्त भारत का समृद्ध प्रांत था, सबसे समृद्ध प्रांतों में से था, और वहां से जो अंग्रेजों ने पैसा निकाला ना बंगाल से, उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने यहां के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया था, और उस पैसे का एक हिस्सा इंग्लैंड भी भेजते थे ताकि वहां के औद्योगिकरण में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम आ सके। तो नवाब ने जब अटैक किया तो ये लोग अंग्रेज वहां से दुम दबा करके भागे। अब नवाब ने क्या किया? देखिए नवाब ने क्या किया, कैलकाटा का नाम बदला। कैलकाटा वॉज रीनेम्ड अली नगर, ठीक है, अली नगर। इसी बीच देखिए हुआ क्या था कि जब अंग्रेज भाग रहे थे ना, तो नवाब सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारियों ने कुछ अंग्रेजों को पकड़ लिया। करीब 146 अंग्रेज पकड़े गए, और 146 अंग्रेजों को नवाब के अधिकारियों ने एक छोटे से कोठरी में ठूस ठूस के बंद कर दिया, और उन 146 लोगों में से 123 लोग दम घुटने से मारे गए और मात्र 23 बचे थे, ठीक है। तो उस घटना को अंग्रेजों ने नाम दिया, दुनिया भर में उसको प्रचारित किया, और भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए, जबकि आगे चलकर ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ की थी। इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला गया इसे। Calcutta was renamed Alinagar, and then Black Hole tragedy had happened. While it is also said that the Nawab Sirajuddaulah himself was not directly or indirectly responsible for this happening of Black Hole tragedy. Officials of the Nawab were responsible to do so. They were responsible for Black Hole tragedy. और जब नवाब वापस आ रहा था, अपना राजधानी नगर वापस आया मुर्शिदाबाद, तो नवाब ने क्या किया, माणिक चंद को कलकत्ता का यानी कि अली नगर का ऑफिसर इंचार्ज बना दिया। तो ही वॉज, माणिक चंद वॉज अपॉइंटेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अली नगर, यानी कि कैलकाटा, अली नगर। ये इतनी चीजें हुई, ठीक है। अब सिराज वापस आ गया। अब उधर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कर्मचारी फुल्टा पे शरण लिए हुए हैं और मद्रास से सहायता आने का इंतजार कर रहे थे। और इसी बीच एक अदने से, एक मामूली से कर्मचारी जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, उसने एक ट्रिक सुझाई, उसने एक चाल सुझाई। उसने ये कहा कि नवाब के दरबार में बहुत से असंतुष्ट दरबारी और लोग हैं, षड्यंत्रकारी हैं। अगर वो अंग्रेज उन्हें अपनी तरफ फोड़ लें, अपनी तरफ मिला लें, तो वो षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला का तख्ता पलट कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सुझाया, क्या सुझाया, कि एक
कॉन्स्पायरेसी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। किसके साथ लेकर के? अलॉन्ग विथ कॉन्स्पायरेसी, अलॉन्ग विथ dissatisfied nobles and courtiers of the court। ठीक है, कॉन्स्पायरेसी अलॉन्ग विथ डिससेटिस्फाइड नॉबल्स एंड कॉर्टियर्स ऑफ द कोर्ट। तो इस षड्यंत्र में रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ असंतुष्ट दरबारियों का साथ लिया, जिसमें सबसे प्रमुख षड्यंत्रकारी साबित हुए मीर जाफर, द चीफ कॉन्स्पायरेटर। तो मीर जाफर यह व्यक्ति खुद नवाब बनना चाहता था, लेकिन सिराजुद्दौला की वजह से यह नवाब नहीं बन पा रहा था। तो मीर जाफर ही हिमसेल्फ वांटेड टू बी द नवाब ऑफ बंगाल। ही वाज पॉलिटिकली हाईली एम्बिशियस। लेकिन ये थे कौन? ये थे मीर बख्शी ऑफ नवाब सिराज। ठीक है, मीर बख्शी हुआ करते थे, सेना के सेनापति हुआ करते थे, मुख्य सेनापति नहीं, क्योंकि मुख्य सेनापति तो नवाब ही था, सिराजुद्दौला ही था। ये सेनापति थे मीर जाफर, मीर बख्शी। ठीक है, अब मीर बख्शी, मीर जाफर अगर नवाब बन जाएंगे तो इनका जो डेप्यूटी होगा वो उसमें वो सेनापति बन जाता, उप सेनापति। जब सेनापति नवाब बनता तो उप सेनापति सेनापति बनता। तो उप सेनापति थे खादिम खान उप सेनापति हुए। तो खादिम खान ये डेप्यूटी थे, डेप्यूटी ऑफ मीर जाफर। ये भी आ गए साथ में कि भाई मीर जाफर जब नवाब बनेगा तो मीर जाफर इनको क्या बना देगा? सेनापति बना देगा सेना का। तो ये आ गए। अब ये दो लोग साथ हैं। अब प्लॉट तैयार किया जा रहा है, षड्यंत्र। लेकिन पैसा चाहिए था षड्यंत्र के लिए ना, क्योंकि एक बड़ी समस्या माणिकचंद थे। माणिकचंद इसलिए समस्या थे क्योंकि ये कलकत्ता के यानी कि अलीनगर के किलेदार थे, और जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक किले का गेट कौन खोलेगा, और जब तक किले का ताला नहीं खुलेगा, किले का गेट नहीं खुलेगा, तब तक ये लोग जीत नहीं पाएंगे। तो माणिकचंद को मिलाना जरूरी था, उसके लिए पैसा चाहिए था। तो पैसा व्यापारियों ने लगाया, बैंकर्स ने लगाया, सोचा कि भाई आगे चल के फायदा होगा। तो एक बैंकर थे, बंगाल के बड़े बैंकर थे जगत सेठ। तो जगत सेठ की मदद ली अंग्रेजों ने, और अमीचंद नाम के एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे बंगाल के। ये रिच ट्रेडर थे बंगाल के, इनसे पैसा लिया गया, और इन दोनों ने लाभ के उम्मीद में पैसा लगाया। और जो मुख्य षड्यंत्रकारी एक और हुए। अब भाई जब तक किले का दरवाजा नहीं खुलेगा, माणिकचंद, तो माणिकचंद को मिलाना था, और अंततः माणिकचंद को मिला लिया गया, माणिकचंद को मिलाया गया। और माणिकचंद कौन है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा, ऑफिसर इन चार्ज, कलकत्ता का किलेदार, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा। ठीक है, अब ये सब मिल गए। नवाब को कुछ नहीं पता इस षड्यंत्र के बारे में, और तारीख थी 23 जून 1757। यह वो दिन था जिस दिन भारत के लिए एक घनघोर अंधेरी काली रात की शुरुआत हुई, और उस घनघोर अंधेरी काली रात की सुबह 15 अगस्त 1947 को जाकर हुई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बंगाल के एक बड़े कवि हुए हैं नवीन चंद्र सेन, उनका ये कथन है। उन्होंने ये कहा था, एक कविता के रूप में इसे कहा था। तो 23 जून 1757, देखिए, बैटलफील्ड ऑफ प्लासी, भागीरथी नदी के तट पर, और वहां पर एक आम का बगीचा, मैंगो ऑर्चर्ड। ठीक है, और दो तरीके से शुरुआत हुई।
जब युद्ध प्रारंभ हुआ, वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द आर्मी ऑफ नवाब लेड बाय मीर जाफर, नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा, करीब 40,000 घुड़सवार सिपाही मिला जुला करके मीर जाफर के पास थे, और मीर जाफर यानी कि सेनापति ने ही युद्ध करने से सिरे से इनकार कर दिया। तो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द आर्मी ऑफ नवाब लेड बाय मीर जाफर रिफ्यूज्ड टू फाइट। ठीक है, और दो छोटे छोटे सैन्य टुकड़ियों के सरदार, एक उसमें थे मीर मदान, ठीक है, और दूसरे थे मोहन लाल। ये षड्यंत्रकारी नहीं थे, ये लड़े, फॉट ब्रेवली, लेकिन कितनी देर तक लड़ पाते? बट सून दे वर डिफीटेड, ये हार जाते हैं। और परिणाम ये हुआ युद्ध का, प्लासी का, तात्कालिक तुरंत परिणाम ये हुआ था कि नवाब लॉस्ट द डे, नवाब की पराजय हुई। नवाब लॉस्ट द डे, नवाब वॉज नॉट डिफीटेड, एंड नवाब लॉस्ट द डे एंड वॉज किल्ड, मार दिया गया नवाब को। किल्ड बाय मीर मीरा, एक व्यक्ति था मीर मीरा, जो कि सन ऑफ मीर जाफर था। मीर जाफर मुख्य षड्यंत्रकारी का बेटा मीर मीरा, इसने, ठीक है ना, ये नवाब को मार देता है। और अब मीर जाफर को अंग्रेज बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर became the new नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां से देखिए, अब ऐसा बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि बंगाल के नए नवाब, मुख्य षड्यंत्रकारी जो हुआ करते थे मीर जाफर, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी भरकम राशि प्रदान की। इतना पैसा प्रदान किया कि कैलकुलेट करके बताया गया उस जमाने में कि यही हिसाब से कि 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपया, 2 करोड़ उस जमाने में बहुत बड़ी राशि होती। 2-2.25 करोड़ के आसपास धन दौलत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो मीर जाफर बिकेम न्यू नवाब ऑफ बंगाल एंड गिव टू द कंपनी a huge sum of money, sum of wealth। बता दें कि 2-2.25 लाख तो मीर जाफर ने सिर्फ अंग्रेजों को नजराने के तौर पे दे दिया था कि लीजिए ये मिठाई उठाई खा लीजिएगा। 2-2.25 लाख रुपया, और 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपया मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इतना पैसा निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वक्त कि इसको कहा ही जाता है प्लासी प्लंडर बोलते हैं इसको। प्लासी की लूट खसोट बोला गया है इसे, क्या ना, प्लासी प्लंडर हो गया ये। तो इसने अब इस लड़ाई के परिणाम ने, षड्यंत्र के परिणाम ने, भारत का दरवाजा लंबे समय तक के लिए 15 अगस्त 1947 तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के लिए खोल दिया था। यानी कि भारत की चाबी मिल गई थी अंग्रेजों को बंगाल में। ठीक है, प्लासी प्लंडर। अब इस प्लासी प्लंडर का एक हिस्सा कंपनी क्या करने लगी? अब कंपनी ने यहीं के पैसे से यहीं का सामान खरीदना शुरू किया। सो द कंपनी स्टार्टेड परचेजिंग इंडियन गुड्स। ठीक है, इंडियन गुड्स यूजिंग
इंडियन मनी। और इसे क्या फिनोमेना, ऊपर हमने पढ़ा था कि इसे क्या फिनोमेना दिया गया, क्या नाम दिया गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे ही पैसे से हमारा सामान, और एक हिस्सा इसका, अ पार्ट ऑफ टोटल प्लंडर वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लैंड का औद्योगिकरण पूरे तरीके से भारत के पैसे से हुआ, लेकिन इंग्लैंड के औद्योगिकरण में भारत के पैसे ने, भारत से लूटे गए पैसे ने बड़ी भूमिका जरूर निभाई थी। ठीक है, तो यहां से ये शुरुआत होती है। इसी को प्लासी प्लंडर बोला जाता है। और नवाब सिराजुद्दौला की हार, ठीक है ना, नवाब सिराजुद्दौला की हार, ये बंगाल की हार साबित हुई, अभी हिंदुस्तान की हार साबित नहीं हुई थी। और अब मीर जाफर नए नवाब थे। मीर जाफर ना हुए मानो कामधेनु गाय हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि जब मन किया नवाब साहब दीजिए 20 लाख, नवाब साहब दीजिए 10 लाख, नवाब साहब दीजिए 50 लाख। नवाब साहब की हालत खराब हो गई, सोचा क्या मुसीबत बन गया, नवाब इतना पैसा कहां से लाए। अब जब नवाब मीर जाफर अंग्रेजों की मांग, ईस्ट इंडिया कंपनी की मांगों को पूरा कर पाने में असमर्थ होने लगे, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफर से मोहभंग होने लगा, मोहभंग होने लगा अब इनका, ठीक है ना। और उस मोहभंग के आलम में, और इधर दूसरी तरफ मीर जाफर भी थक रहे थे, पैसा देते देते हालत खराब हो गई थी इनकी। तो मीर 1759 की बात है, 1759 प्लासी के 2 साल के बाद, 2 साल तक ही ये आगे अपना काम कर पाए थोड़ा बहुत। तो मीर जाफर ने यह सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर लेते हैं। षड्यंत्र की तो आदत ही पड़ गई थी इसे, षड्यंत्र कर लेते हैं। तो इसने डचों के साथ मिलकर के, थोड़े बहुत डच बचे हुए थे, डच हॉलैंड वाले, डचों के साथ मिलकर के षड्यंत्र करने की सोची। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को डचों के साथ नवाब जाफर के इस षड्यंत्र का पता चल गया, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को हराया, और हरा करके भारत से बाहर धकेल दिया, इनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, तो डच लोग भारत छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए, और नवाब मीर जाफर की पोल पट्टी खुल चुकी थी अंग्रेजों के सामने कि उन्होंने षड्यंत्र किया था डचों के साथ मिलकर। तो 1760 में मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया गया, और उनसे कहा गया कि आप अपने सन इन लॉ, दामाद के पक्ष में गद्दी छोड़ रहे हैं। तो मरता क्या ना करता, मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी, और अब नया नवाब बन चुके थे मीर कासिम, ठीक है ना। तो इन 1760 मीर कासिम सन ऑफ मीर जाफर, मीर कासिम सन ऑफ मीर जाफर, सॉरी, सन इन लॉ, सन इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर became the new नवाब। ठीक, अब मीर जाफर ने कंपनी को पैसा भी दिया, गिव टू दी कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड 3 टेरिटरीज, 3 एरियाज। अब देखिए, कंपनी जब पैसा निकाल पाती थी तो कंपनी पैसा भी निकाल लेती थी, और जब पैसा ज्यादा नहीं निकाल पाती थी कंपनी, तो कंपनी क्षेत्र निकाल लिया करती थी। क्षेत्र, टेरिटरी, इसी को हम लोग लिखे ना, वो आगे हम लोग जो हेडिंग पीछे में लिखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बिजी इन चेंजिंग इट्स पॉलिसी फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो यही था, ट्रेड टू टेरिटरी
मिलिटरी एंड वेल्थ, एक्वायरिंग वेल्थ। तो 3 एरिया दिए। कौन कौन से 3 एरिया दिए? बर्दवान का एरिया, मिदनापुर और चटगांव। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र प्रदान कर दिए, और पैसा थोड़ा बहुत दिया वो अलग से। अब लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम में एक फर्क था। मीर कासिम अच्छा प्रशासक था और मीर कासिम अपना डोमिनेंस, अपना प्रभाव विकसित करना चाहता था, क्या ना? तो ये अपना सेपरेट स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस बनाना चाहता था, अपना अलग प्रभाव क्षेत्र बनाना चाह रहा है, ठीक है ना? और उस प्रभाव क्षेत्र को बनाने के लिए नवाब मीर कासिम को पहले तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पैसा निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? पहले तो टैक्स बर्डन बढ़ाया। तो ही हैड इंक्रीज्ड टैक्स बर्डन, ठीक है? टैक्स बर्डन बढ़ाया, ठीक है? प्रिवेंटेड, ट्राई टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ दस्तक, दस्तक का दुरुपयोग रोकने की कोशिश की ताकि और टैक्स निकाल सके। ट्राई टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ दस्तक। और तीसरा काम इन्होंने किया, उस पैसे से मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिज आर्मी, सेना का आधुनिकीकरण किया। अब ये तो बढ़िया नवाब निकल गया, a good administrator, a good nawab. And now a good nawab was not at all in favor of political and economic interest of the British East India Company. तो अब 1763 तक आते आते नवाब परेशान होने लगा कंपनी से। तो नवाब ने सोचा कि कैपिटल ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर किया नवाब ने, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुंगेर की स्पेलिंग ब्रिटिश लोग लिखते थे, वही स्पेलिंग है मोंगेर, मुंगेर। सो कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब कुछ ज्यादा हो रहा था अंग्रेजों के लिए, तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? नवाब के साथ युद्ध छेड़ दिया और छोटी छोटी कई लड़ाइयां हुई। सो आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल्स, आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्केल बैटल्स, अब जब नवाब को समझ में आ गया कि वो होल्ड नहीं कर पाएगा बंगाल में अपना पोजीशन, तो मीर कासिम he fled from there and reached पहुंचे। कहां पहुंचे? ये पहुंचते हैं अवध के नवाब शुजा के दरबार में, एट द कोर्ट ऑफ नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला। ये बात 1763 की है। और इसी के 2 साल पहले 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में यही शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ खड़े थे मराठों के विरुद्ध, ठीक है? शुजा। अब जब ये दरबार में पहुंचे हैं, मीर कासिम शुजा के दरबार में पहुंचे, तो वहां देखा कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी वहीं मौजूद थे, उपस्थित थे। और शाह आलम द्वितीय दिल्ली छोड़ के भागे हुए थे कि उनका वजीर कहीं उनको अंधा ना बना दे, मर्डर ऑर्डर ना कर दे। तो अब 3 लोग हैं वहां पे, और सबसे बड़ी अथॉरिटी नाम की ही सही, शाह आलम द्वितीय, वो भी मुगल सम्राट, द मुगल एम्पेरर, ठीक है? गिरते हुए खंडहर, मुगल साम्राज्य के मालिक नाम के, ठीक है? नवाब साहब, अवध के नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। और
बंगाल से बात किया है नवाब मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। अब ये तीन भारतीय शक्तियां, ये इन्होंने अलायंस किया, आपस में अलायंस किया कि भाई मिलके एक बार लड़के देख लेते हैं कंपनी के साथ, तो अलायंस किया और इस अलायंस का रिजल्ट था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर October 1764, and Indian powers, as a result of this battle, Indian powers were uprooted, defeated। ये लोग हार जाते हैं, और जब ये लोग हारते हैं तो अब देखिए इस हार में हिंदुस्तान की हार छुपी हुई है। प्लासी के हार में बंगाल की हार थी, बक्सर की हार में हिंदुस्तान की हार हो गई, क्योंकि शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट शहंशाह ए हिंदुस्तान भी मौजूद थे। तो अब इन्हें दो लोगों को, मीर कासिम मारे गए, बचे दो लोग, इन दो लोगों को इलाहाबाद बुलाया गया, ठीक है, वहीं से बक्सर से इलाहाबाद बुला लिया गया, और इलाहाबाद में इन लोगों के साथ संधि की गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अब ये चूंकि हिस्ट्री है, उस वक्त ये नाम इलाहाबाद था, तो अब ये प्रयागराज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही रहेगा। और दिन था 15 अगस्त, इत्तेफाक देखिए 15 अगस्त 1765 हो गया, ठीक है, पहुंचते पहुंचते 1765 हो गया था। और दो संधियां हुई इलाहाबाद में, इलाहाबाद की संधि, एक हुआ नवाब शुजा से, अवध के नवाब शुजा से, और दूसरी संधि हुई शाह आलम सेकंड से, ठीक है। शुजा के साथ दरअसल जो संधि हुई वो सब्सिडियरी अलायंस है, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। और शुजा से लड़ाई का हर्जाना लिया गया, इनसे लिया गया रुपया 50 लाख एज द वॉर रिपरेशन, वॉर रिपरेशन, लड़ाई का हर्जाना 50 लाख रुपया लिया गया, ठीक है। दूसरा, अवध became a subsidiary state, subsidiary state, ठीक है, ये सहायक राज्य बन गया। और इसका मतलब यह था कि अवध के नवाब शुजा ने यह मान लिया, उन्हें मानना पड़ा कि वो द्वितीय श्रेणी की शक्ति है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम श्रेणी की शक्ति बन गई है, ठीक है ना। तो ये सब्सिडियरी स्टेट हो गया, और यह भी स्वीकार करना पड़ा नवाब साहब को कि अ ब्रिटिश रेजिडेंट would be stationed at his capital, at his capital city, कि उनके राजधानी नगर में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, और वो अंग्रेज रेजिडेंट देखेगा कि नवाब साहब क्या कुछ कर रहे हैं, क्या प्रशासन चला रहे हैं। तो अब वास्तव में आप देखिए नवाब साहब के पास शक्ति नहीं बची, और प्रशासनिक शक्तियां किसके हाथों में सिमट गई, ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में सिमट करके रह गई थी, ठीक है ना। तो नवाब ने एक्सेप्ट किया शुजा ने कि ब्रिटिश पैरामाउंट पावर हो गई। अब कौन पैरामाउंट पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पैरामाउंट पावर है इंडिया में, पैरामाउंट पावर। ये किसने एक्सेप्ट किया, ये शुजा ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो ये सब्सिडियरी अलायंस था, सहायक, ये तो सहायक संधि थी। और दूसरी तरफ शाह आलम सेकंड को, जो उनके साथ इलाहाबाद की संधि हुई, तो ये जो 50 लाख रुपया शुजा से लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो 50 लाख रुपया शाह आलम द्वितीय को दे दिया, और वो उस 50 लाख के बदले में शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे, की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व की वसूली का अधिकार मिल गया था। तो द कंपनी गेव टू शाह आलम सेकंड, रुपया 50 लाख। कौन सा 50 लाख? नवाब शुजा वाला 50 लाख, अपने पॉकेट से तोड़े ही ना। तो द कंपनी गेव टू शाह आलम सेकंड रुपया 50 लाख एंड इन रिटर्न received the Diwani rights, of बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल हुआ करते थे। इसका मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये थे शाह आलम सेकंड। और इस पूरे घटनाक्रम को बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और जैसे देखिए बंगाल में मीर जाफर थे ना मुख्य षड्यंत्रकारी, और यहां पर जो बैटल ऑफ बक्सर में जो पराजय हुई ना, बैटल ऑफ बक्सर में अवध के वजीर ने धोखाधड़ी किया और अंग्रेजों को जाके सारी बात बता दी। तो वो उनका नाम था बेनी बहादुर, नाम में बहादुर लेकिन बेहद ही कायर आदमी। बेनी बहादुर प्राइम मिनिस्टर या वजीर ऑफ अवध, ये कॉन्स्पायरेसी कर गए। ठीक है ना, तो ये अवध के मीर जाफर साबित हुए। बेनी बहादुर अवध के मीर जाफर साबित हुए। ये भी पराजय का एक कारण था। हाँ, ये मुख्य कारण नहीं था, क्योंकि देखिए प्लासी से जो पैसा अंग्रेजों ने निकाला था, उस पैसे का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने अपनी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना मजबूत कर ली थी, और वह मजबूत सेना बक्सर में उनके काम आ गई थी। लेकिन यहां पर भी धोखाधड़ी हुआ। ठीक है, तो अब 1765 के बाद हम देख रहे हैं 1765 के आसपास कि अवध सब्सिडरी स्टेट हो गया और बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना भरपूर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद बंगाल में जो कुछ भी अंग्रेजों ने लगाया प्रशासनिक व्यवस्था, उसको बोलते हैं बंगाल में द्वैध शासन, डायरकी ऑफ बंगाल। ठीक है ना, ड्वेल रूल ऑफ बंगाल। और इसमें इस डायरकी में आप देखेंगे कि दो चीजें सम्मिलित हैं। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू। ठीक है, रूल ऑफ नवाब, ठीक है, और रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रूल ऑफ नवाब एंड रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब का रूल क्या है? कुछ नहीं है, ये नवाब सिर्फ डे ज्यूरे इंडिपेंडेंट, नाम मात्र के स्वतंत्र, मुखौटा बन के रह गया ना, ये सब्सिडियरी स्टेट हो गया, डे ज्यूरे इंडिपेंडेंट रूलर। और इनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो ही हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अवध, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन कोई ताकत नहीं, विदाउट एनी अथॉरिटी, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनी अथॉरिटी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑल द अथॉरिटी, सारे अधिकार, बट ऑल द अथॉरिटीज विदाउट, ठीक है ना, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें भी दोनों अधिकार, निजामत, ठीक है, निजामत का मतलब हो गया पुलिस और जुडिशियरी। ठीक है, पुलिस और जुडिशियरी, और दीवानी, अभी हमने पढ़ाई दीवानी। तो दीवानी मतलब ये राजस्व वसूली का अधिकार। तो दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? नवाब। आगे नवाब पहले दे दिया था 1763 में ही नवाब नजमुद्दौला ने। ठीक है, 1763 में मीर कासिम भागे, तो मीर कासिम के तुरंत बाद फिर से मीर जाफर को बनाया गया।
कुछ ही महीनों में मीर जाफर की डेथ हो गई तो उसके नाबालिग बेटे नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया था, और नजमुद्दौला से अंग्रेजों ने बंगाल का निजामत ले लिया था, पुलिस और जुडिशरी ले लिया था, और दीवानी ले लिया। किससे? दीवानी ले लिया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपने प्रभुत्व की स्थापना कर ली थी। ठीक है ना। और इसके पश्चात जो अगला चरण होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर की रियासत को अपने प्रभुत्व में लिया और मराठा शक्तियों को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।